बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर में एक बार फिर राज्यसभा के तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। दुर्गापुर हाउस के बाहर सड़क पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर के इस्पात नगरी स्थित दुर्गापुर हाउस में केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात करने के लिए राज्यसभा सांसद डोला सेन पहुंची थी। मुलाकात के बाद जब वो दुर्गापुर हाउस से बाहर निकली तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाते हुए चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ समय तक वहां तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। भाजपा कार्यकर्ता जयदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल श्रमिक संगठन के भ्रष्ट नेता भाजपा के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के विरोध में हमने डोला सेन को काला झंडा दिखाया। डोला सेन तृणमूल के गलत लोगों से जुड़ी हुई हैं। गौरतलब हो कि डोला से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी करीबी रही हैं। वो तृणमूल के सत्ता में आने से पहले से लेकर सत्ता 15 के 15 আমরা দুর্গাপুরে বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে মন্ত্রীজির সাথে দেখা করেছিলাম। এর আগে আপনারা জানেন দিল্লিতে আমি কিছু না হলেও ওনার সাথে 10 বার দেখা করেছি। আপনারা রিপোর্টাররা সবাই জানেন আমাদের যে দাবি দাবা নিয়ে। এখানে এসে দেখি যে চোর দোলাসেন যে 75 দুর্গাপুর থেকে তুলে নিয়ে যাবে এবং দুর্গাপুরের চোর নেতাদেরকে 25% ভাগ করে দিয়ে যাবে। সে এসে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন অনৈতিক ইয়ের সাথে উদ্দেশ্যের সাথে এবং চোর INTC নেতারাও ভেতরে রয়েছে। আমরা ওই জন্যই ঠিক করি যে চোরকে এই দুর্গাপুরের মাটি থেকে উৎখাত করবো না। দুর্গাপুরকে মাটিতে ঢোকা বন্ধ করবে এই চোর অমানুষগুলোকে। এই চোরদের দুর্গাপুরের মাটিতে কোনো জায়গা নাই, কোনো স্থান নেই। মুর্দাবাদ। বলছি ডোলা সেন তো তৃণমূল থেকে এসেছিল। তৃণমূল থেকে এসেছিল তো এটা কোন তৃণমূল থেকে এসেছিল কিছু জানা গেছে? খারাপ তৃণমূল থেকে, কালীঘাট তৃণমূল থেকে। ভালো তৃণমূলে প্রতিনিধিত্ব ডোলা সেন করে না বললো। আপনারা কি কালো পতাকা দেখিয়ে তাকে তাড়ালেন? হ্যাঁ, কালো পতাকা দেখি তাড়িয়েছি। ভবিষ্যতে আরো অনেক বড় কিছু দেখানো হবে। এখন কালো পতাকা শুধুমাত্র ট্রেলার ছিল। ঠিক আছে, আপনার নাম? জয়দীপ ব্যানার্জি। কি দায়িত্বে আছেন আপনি? আমি এমনি সংগঠনের সাথেই যুক্ত আছি। বিজেপি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर के भिरंगी मोड़ स्थित जीटी रोड किनारे सोमवार सुबह NHAI ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे कई अस्थायी हॉकरों की दुकानें हटाई गई। हॉकरों का कहना है कि दुर्गा पूजा से पहले इस कार्रवाई से उनके कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा और कई परिवारों की आजीविका संकट में पड़ सकती है। वहीं NHAI अधिकारियों के अनुसार करीब 1 महीने पहले ही अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद कई हॉकरों ने स्वयं ही अपनी दुकानें हटा ली थी। अभियान के दौरान क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की तैनाती रही तथा स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। এনআই হাইওয়ে যখন হাঁটাচ্ছে হেঁটে যাচ্ছি আবার এসে বসাচ্ছি আমরা আবার এক মাস হ্যাঁ। 10 দিন পরে আবার বসছে। এই যে ইনি কি করলো জবরদস্ত করে ডিএমসি ট্রেনটাকে ঢালাই দিল ইলেকশনের টাইমে। ডিএমসি কে খবর দিচ্ছি, পুলিশকে খবর দিচ্ছি, কেউ আসে না, কেউ আসে না এই জায়গা। উনি নিজের মতন ঢালাই দিয়ে চালা বানিয়ে নিয়ে এখন হোটেল খুলবে। আচ্ছা, এখানকার যে মালিকের যারা অভিযোগ করছেন পাশের দোকান, সে কি আছে? চশমালা 21 जुलाई को आयोजित होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को गिरजा मोड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोलकाता के शहीद मीनार पर होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में साउथ ब्लॉक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न ब्लॉकों से कार्यकर्ताओं को कोलकाता ले जाने, कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और शहीद दिवस को प्रभावी ढंग से मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 21 जुलाई 1993 के आंदोलन में शहीद हुए 13 लोग युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद के वर्षों में टीएमसी ने पूरे आंदोलन और शहीद दिवस को हाईजैक कर लिया। আমাদের আজকে একটা ব্লকের মিটিং করা হলো আসানসোল সাউথ ব্লক থেকে, যে 21শে জুলাই যে শহীদ দিবস, সেই প্রোগ্রাম শহীদ মিনার কলকাতাতে রাখা হয়েছে। সেই কলকাতার প্রোগ্রামকে সাকসেসফুল করার জন্য আমাদের যা ভেতরের চর্চা, আমাদের কিভাবে কি করব না করব, সেই নিয়ে ডিসকাশন হলো। আমাদের 1993 সালে যে ঘটনা ঘটেছিল, এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি কলকাতার বুকে শহীদদের সম্মান কম, অসম্মান বেশি হয়েছে। তো শহীদদের প্রাপ্য সম্মান যাতে শহীদরা পান, তার জন্য আবার কংগ্রেস পার্টি এইবার শহীদ মিনারে 21শে জুলাই প্রোগ্রাম রেখেছে। তো সেইখানে আমরা কিভাবে পৌঁছাবো, কিভাবে লোকজনকে জানাবো, বেশি লোকের কাছে জানাতে হবে যে যারা শহীদ হয়েছিল তারা কংগ্রেসই ছিল। কারণ এতদিন তৃণমূল বলতো যে কংগ্রেসই ছিল না, ওগুলো আমাদের লোক, কিন্তু মারা গেছিল যুব কংগ্রেসের সৈনিকরা। তাদের আন্দোলন ছিল যে নো আইডেন্টিটি নো ভোট, এই নিয়ে যুব কংগ্রেস আন্দোলন করেছিল। এবং মনীশ গুপ্ত যে ওই স্টেজে বসে থাকতো 21শে জুলাই এতদিন এত বছর ধরে, ওই যে ডিজে বাজিয়ে নাচ হতো আর ডিম ভাত খাইয়ে আর অর্ধেক লোক রাস্তায় পড়ে থাকতো, ওই শহীদদের প্রতি অসম্মান যেটা হয়েছে সেটাকে আমরা তর্পণ করে এই বছর থেকে পরিষ্কার করব। আমরা ওই জিনিসটাকে সামনে রেখে কিভাবে শহীদ দিবসটাকে ভালো করে পালন করা যায়, কিভাবে সাকসেসফুল করা যায়, সেই নিয়ে একটা ব্লকের ডিসকাশন হবে। কোথায় করবেন না কোথায় হচ্ছে আমাদের এইটা তো কলকাতা শহীদ মিনারে হবে আমাদের প্রোগ্রামটা, কিন্তু ডিফারেন্ট ব্লকে আমাদের প্রোগ্রাম করতে হবে, ব্যানার পোস্টারিং করতে হবে, স্ট্রিট কর্নার করতে হবে। এই নিয়ে আমরা আজকে আমাদের ভেতরে ডিসকাশন করলাম।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से रथ यात्रा पूजा समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सोमवार को नवन्नो सभागार से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की पूजा समितियों को अनुदान राशि वितरित की गई। इसी क्रम में आसनसोल स्थित पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले की 4 रथ यात्रा पूजा समितियों को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए के अनुदान का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय, जिलाधिकारी एस पुन्नबलम, पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रणव कुमार तथा संबंधित पूजा समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य सरकार का कहना है कि इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य रथ यात्रा उत्सव के बेहतर और सुव्यवस्थित आयोजन को प्रोत्साहित करना तथा पूजा समितियों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। गौरतलब हो कि दुर्गापुर से लेकर आसनसोल तक विभिन्न इलाकों में बड़े उत्साह से और बड़े पैमाने पर रथ यात्रा निकाली जाती, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা নতুন উদ্যোগ এই বছরে আমাদের রাত কমিটিগুলো আছে, রাত কমিটিগুলোকে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে কয়েকটা কমিটিগুলোর হাতে আজকে ওই ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স আর্থিক অনুদান 5 লাখ করে রাত যাত্রা কমিটি 4টে রাত যাত্রা কমিটি আমাদের জেলা থেকে আজকে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পক্ষ থেকে দেওয়া হলো। আজকে অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার নবান্ন সভাগার থেকে উনি আরও সিনিয়র অফিসাররা ছিলেন ওখানে। আর এখানে আমাদের জেলাতে 4টে কমিটিকে আমরা মাননীয় বিধায়ক সিপি স্যার আরও কমিটি প্রতিনিধিরা ছিলেন। 4টে কমিটি আমাদের সিলেকশন হলো, যেটা ইস্কন দুর্গাপুর আর শ্রী শ্রী গৌরঙ্গ মন্দির মা अन्नपूर्णा बंदारा, ইস্কন আসানসোল, শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির সমিতি মামরা দুর্গাপুর। এই 4টে কমিটিকে আজকে 5 লাখ করে অনুদানটা দেওয়া হলো। আরও আমরা রথযাত্রা কমিটিগুলোতে সঙ্গে আলোচনা করে ওখানে আইএনসি দপ্তরের নির্দেশে একটা আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা হেল্প ডেস্ক বানানো হবে। ওই হেল্প ডেস্কে আমাদের সিভিল আর পুলিশ এবং হেলথ ইনাদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। আর আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার বলেছিলেন কয়েকটা গাছও বিতরণ করা হবে বলে, ওখানে আমরা গাছ বিতরণেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। আর এখানে মূলত ওই পানীয় জল আর ওআরএস আর ফার্স্ট এইডের যেটা কিছু আমাদের বেসিক মেডিসিনসগুলো এগুলো এই হেল্প ডেস্কে থাকবে। এটা আমরা আমাদের যতগুলো বড় আছে মোটামুটি যেখানে বেশি লোক যায় ওই কমিটিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ওখানে হেল্প ডেস্কটা রাখবো আমরা। স্যার জেলায় তো আরও রথ যাত্রার কমিটি রয়েছে বা ব্যবস্থা রয়েছে, পরে কি এগুলো? राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने की सरकारी योजना के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को पार्टी की सलानपुर एरिया कमेटी ने रूपनारायणपुर स्थित पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी के WBSEDCL के CCC कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों को 9 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 के विद्युत अधिनियम की मूल भावना की अनदेखी करते हुए राज्य सरकार आम बिजली उपभोक्ताओं पर जबरन स्मार्ट मीटर थोपना चाहती है। उनका कहना है कि ये व्यवस्था आम लोगों के हित में नहीं है, बल्कि इससे मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और मेहनतकश परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सीपीआईएम नेताओं का दावा है कि स्मार्ट मीटर लागू होने से उपभोक्ताओं को प्रीपेड व्यवस्था, अधिक बिल और बिजली आपूर्ति को लेकर नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को लेकर पार्टी ने सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को सौंपे गए ज्ञापन में 9 प्रमुख मांगे शामिल हैं। इस ज्ञापन पर देबाशीष दे, मनोज दत्त, प्रदीप दत्त, सुब्रत
चट्टोपाध्याय और तपसी चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर है, जिसे रूपनारायणपुर सीसीसी कार्यालय के अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद पार्टी नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता को साथ लेकर राज्यव्यापी और व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विरोध के बीच अब सबकी नजर राज्य सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা প্রচার করেছি যে স্মার্ট মিটার, যেটা এই রাজ্যে ভাজপা সরকার আসার পরেই হকার উচ্ছেদের পর গরিব মানুষকে, গরিব ব্যবসাদারকে, ছোট দোকানদারকে উচ্ছেদ করে তাদের সর্বনাশ করার পর যে নতুন উচ্ছেদ মানে সর্বনাশ প্রকল্প নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে স্মার্ট মিটার। স্মার্ট মিটারটা মানুষের পক্ষে, গরিব মানুষের পক্ষে বিশেষত এত বড় একটা ধাক্কা আসতে চলেছে যে এই স্মার্ট মিটার কোনো মতে বরদাস্ত করা যাবে না। এটা আমরা সিপিআইএম পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্য স্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তকে আমরা লিফলেট প্রচারে, মাইক প্রচারে, গ্রামে গঞ্জে, ধাওড়ায়, মহল্লায়, শহরে, পিচের রাস্তায়, কাদার রাস্তায়, সমস্ত জায়গায় আমরা প্রচার করেছি এবং করে আমরা সামান্য একটা অংশ নিয়ে আজকে এখানকার আধিকারিকের সময় নিয়ে আগে থেকে চিঠি দিয়ে আমরা এখানে বলতে এসেছিলাম যে এই চিঠি লেখা আছে যে স্মার্ট মিটার আমরা লাগাতে দেব না। তৎসত্ত্বেও আমরা এখানে এসে দেখলাম যে এখানকার যিনি এসএস যে এত উদ্ধত্ত যে তিনি সেই সময় উপস্থিত থাকেননি। আমরা সেই সময় রাস্তা অবরোধ করলাম। তার কারণ হচ্ছে যে অন্য কোনো তো উপায় নেই, আমরা কথাটা ওনার সাথেই বলবো, অন্য কারোর সাথে তো বলে লাভ নেই। তো রাস্তা অবরোধ করায় স্বাভাবিকভাবে কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ এলেন, পুলিশকে দিয়ে তাদেরকে ডাকিয়ে আনতে হলো। মানে এখানকার সালানপুরের পাবলিক প্রতিনিধি যারা সার্ভিস প্রোভাইডার তাদের এই অবস্থা। সামান্য একটা ডেপুটেশন, সামান্য একটা কথা বলার জন্য তারা সঠিক সময় উপস্থিত থাকবেন না। কি যুক্তি না তিনি ফিল্ডে ছিলেন। আরে আপনি এত ফিল্ডে থাকেন তাহলে সালানপুরে সারাদিন কারেন্ট থাকে না কেন? আপনি এত ফিল্ড ওয়ার্ক করেন। তো যাই হোক, আমরা তার কাছে দিয়েছি। শুধু স্মার্ট মিটার নয়, এই অঞ্চলের আরও যে সমস্যা আছে, এখানে লোডের সমস্যা, এখানে কারেন্ট ইন্টারাপশনের সমস্যা থেকে শুরু করে এখানে ইলেকট্রিক অফিসের বাইরে পার্কিংয়ের সমস্যা, এখানে যে কেবেল, তার যে অসম্ভব বাজে কোয়ালিটির কেবেল এখানে দেওয়া হচ্ছে, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা ডিটেলসে কথা বলেছি এবং ওনাকে জানিয়েছি এগুলো নিয়ে আপনি ব্যবস্থা নিতে শুরু করুন। একদিনে এই সমস্যার সমাধান হবে না, কিন্তু আমরা আপনার ইন্টেনশনটা দেখব, আপনার মানসিকতাটা দেখব, আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখব। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি ভালো হয় আমরা সহযোগিতা করব, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি ভালো। पश्चिम बर्धमान के लौदोहा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर इच्छापुर मजार के सामने स्थित एक परित्यक्त मकान में छापेमारी कर पुलिस ने चल रहे जुए के अड्डे का भांडा फोड़ कर दिया। मौके से 10 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नगद राशि और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को आज दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि लौदोहा थाना क्षेत्र के इच्छापुर मजार के सामने बने खाली पड़े मकान में नियमित रूप से जुए का खेल चलता है। इस कारण इलाके में असामाजिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी और स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल था। बताया जा रहा है कि बीती रात गुप्त सूचना मिलते ही फरीदपुर लौदोहा थाना पुलिस ने विशेष अभियान की तैयारी की। पुलिस की एक विशेष टीम ने अचानक उस परित्यक्त मकान को चारों ओर से घेर लिया और अंदर चल रहे जुए के खेल पर धावा बोल दिया। पुलिस की गाड़ियां पहुंचते ही जुआड़ियों में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस पहले ही सभी रास्तों की घेराबंदी कर चुकी थी। भागने की कोशिश कर रहे लोगों को मौके पर ही दबोच लिया गया और 10 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान जुए के बोर्ड से 25,670 रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि इलाके को इस तरह की असामाजिक गतिविधियों से मुक्त करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पूरे मामले की जांच लौदोहा थाना पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में जुए के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर
आसनसोल के एएसआई अस्पताल में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के भविष्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया है कि या तो उनका दूसरे स्थान पर तबादला किया जाएगा या फिर उन्हें वर्तमान कार्यस्थल छोड़ना होगा। इस सूचना के सामने आते ही अस्पताल परिसर में संवेदा कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले की खबर फैलते ही डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अस्पताल प्रशासन के फैसले का कड़ा विरोध किया और इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि आसनसोल ईएसआई अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है। इसी वजह से उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में भी वे इसी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन अचानक तबादले या नौकरी छोड़ने जैसी प्रक्रिया शुरू किए जाने से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये फैसला उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ एकजुट हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस आंदोलन में 200 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपना हिस्ट्री निकालोगे ईएसआईसी पटना, उसको भी सेंट्रल ने लिया था, वो भी मेडिकल कॉलेज बना था। वहाँ पे आई हैव गॉट अ मैसेज ऑल्सो कि वहाँ पे 70% लोगों को परमानेंट कर दिया एंड एब्जॉर्ब ऑल द स्टाफ। आप ही बताओ, इतने सारे जो है सबका घर तो हम लोग पे डिपेंडेंट, हम लोग तो कहीं और नहीं जा सकते। हम इसके बाद क्या करेंगे? एटलीस्ट कुछ तो बताते कि क्या है क्या नहीं। आप अचानक से ऐसे बोलो विदाउट एनी हमारा फॉल्ट क्या है? क्या फॉल्ट है? यहाँ पे सर्व करे थे इतने साल से, मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे सर्व करते, कोविड टाइम से मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। और हम लोग बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।